हाय एस्पिरेंट्स, वी आर हियर अगेन। हम लोग डिस्कस करेंगे सीसेट के बारे में फिर से। यस, कल हमने डिस्कस किया था कि हर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे और क्वांट्स में टॉपिक वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन था। एंड आई बीन गेटिंग अ फ्यू क्वेश्चंस इन द ग्रुप अबाउट was it the toughest paper of CSAT, and I think we need to address this for everyone, and this is what I think, and we'll talk about this. The purpose of this video is to make all the aspirants, everyone who is going to appear in future for UPSC, to make your orientation right about CSAT. How should you approach CSAT? It is very critical. It has a different purpose and a different kind of exam, right? It is a qualifying exam where you have to, be correct in only 27 questions. 67 marks is what you need to qualify, and that is very critical and important to understand before saying that CSAT का ये toughest paper था, CSAT का easy paper था. So let's get into that, right? Yes, तो CSAT is a qualifying paper, right? हमको इसमें ये टारगेट नहीं करना है कि हम 100 मार्क्स कैसे स्कोर करें, 150 कैसे स्कोर करें। हमको 67 मार्क्स चाहिए, राइट, क्वालिफाई करने के लिए। वी आर नॉट competing with other aspirants here for marks. We are competing here against ourselves to cross that mark. 67, 27 questions, right? So here you have to be, correct in only 27 questions. You have to score 67 marks to qualify. This is the starting point for making the strategy for CSAT. सबसे पहले this video, or whom I'm addressing, is non-STEM students, who are non-science, tech, engineering and management students, or anyone who has a kind of weak quantitative aptitude or reasoning, right? तो ये डिस्कशन चल रहा है कि सीसेट टफेस्ट पेपर था, राइट? टफेस्ट पेपर इन लास्ट 4-5 years, 6 years. प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम लोग गलत क्यों हैं ये बोलने में? बिकॉज देयर आर 3 पॉइंट्स. वन इज कि अगर आप ये मान लेते हो कि ये टफेस्ट पेपर है, तो आपको लगेगा कि यूपीएससी इससे आसान पेपर पूछेगा आगे, एंड यू विल नॉट लर्न कि ये पेपर अप्रोच कैसे करना है. इफ यू हैव टू स्कोर 67 मार्क्स टू क्वालिफाई 27 करेक्ट क्वेश्चंस, जनरली लोग बोलते हैं 45-50 के करीब आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए. क्या 2025 के पेपर में 45-50 के करीब ऐसे क्वेश्चंस थे जो इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते थे? बिल्कुल थे, जैसा कि हमने कल देखा. एंड आई विल एम्फेसाइज दैट अगेन कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं, बट क्वेश्चंस वर स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड ऑफ कोर्स हर क्वेश्चन में ये जरूर था कि what assumptions has been made, but if you have understood the paragraph, it was easy. It was not that difficult or tricky. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 29 क्वेश्चंस थे. अगर आप लगातार न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते थे 29 क्वेश्चंस. उस पे मे बी आपका 80% करेक्ट होता है, एक्यूरेसी 80%. सो दैट इज 24 क्वेश्चंस यू हैव. What are we talking about now? 24 question, and reading comprehension is for anyone who is preparing for UPSC, right? वो तो हर कोई कर रहा है, हर कोई रीडिंग कर रहा है. तो अगर आपका रीडिंग स्पीड स्लो है तो आपको उस पर काम करने का जरूरत है, ठीक है? तो बाकी आपको 25 से 30 क्वेश्चन और चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है? एंड आई विल अगेन से द ट्रिक इज टू फाइंड आउट दोज 15-20 क्वेश्चंस, और बहुत इजीली अवेलेबल थे वो 15-20 क्वेश्चंस, ठीक ना? आफ्टर आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल गो थ्रू दैट वन बाय वन, एंड in fact there were a few questions जहां पे 30 seconds लगना था या less than 1 minute लगना था. I have solved the paper, and even from someone, from the perspective of someone who doesn't have engineering background and who has prepared for CSAT, उसने सारे topics cover करे हैं, उसने क्वेश्चंस लगाए हैं, पीवाईक्यूज करे हैं सीसेट के. इट वाज easy to pick those questions, 10, 12, 15 questions from quants, 10 questions from reasoning to qualify. I'm saying this unambiguously, very directly, that it was not difficult to find those questions. I'll just demonstrate 10-15 questions, and just so that you realize कि yes, it could have been picked. You can pick, and कोई भी जो सीसैट की प्रिपरेशन कर रहा है वो उसको अप्रोच ऐसे ही करना चाहिए.
पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, रीजनिंग और क्वांट्स में फाइंड आउट 20-25 क्वेश्चंस मोर, 30 क्वेश्चंस मोर मे बी, एंड सॉल्व दोस। डोंट गो फॉर टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस थे क्या? क्वांट्स में टफ क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चंस वेर वेरी डिफिकल्ट। 10 क्वेश्चंस वेर वेरी डिफिकल्ट, जिनको छोड़ना था आपको, अटेम्प्ट ही नहीं करना था, किसी के लिए भी आसान नहीं था। एंड दैट्स वेयर यू विल लिसन फ्रॉम आईआईटी आईएम फोक्स की भाई टफ था क्वेश्चन। यस, वो 10 क्वेश्चन किसी के लिए नहीं था, वो अटेम्प्ट ही नहीं करना है आपको, ठीक है? सो लेट्स गो थ्रू सच क्वेश्चंस। आइडिया हियर इज टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके देन क्वांट्स और रीजनिंग से आप इजीली 25-30 क्वेश्चंस पिक कर सकते थे। 10 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे क्वांट के, और ये हमेशा होगा। दैट्स व्हाट यूपीएससी इज टेस्टिंग, राइट? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सारे क्वेश्चंस इजी रहेंगे। अगर आपको स्ट्रेस में नहीं डालेंगे तो हाउ एम आई गोइंग टू टेस्ट द एप्टीट्यूड? दैट इज द अप्रोच, राइट? सो दिस विल हैपन all the time, even in future. So anybody who is telling you कि this was the toughest paper and you are making an assumption कि यार ये तो toughest है, इसके बाद तो easy होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। पूरा पेपर कभी भी easy नहीं आएगा, right? We will go through such questions and I'll want your opinion if these questions are easy or difficult, you know. Just go through these ones and just let me know. I have picked only 10 to 15. You can go through the paper, and rather than staying on the difficult questions and trying to solve those, try to find out such kind of questions. I just want you to be very comfortable with CSAT and not being scared of CSAT. So don't go there. It is doable. आराम से हो जाएगा basically CSAT. Look at this question, right? So what comes at X and Y respectively in the following sequence? जनवरी के बाद जनवरी आ रहा है, फिर दिसंबर आ रहा है, फिर अक्टूबर आ रहा है। तो हमने क्या देखा? जनवरी के बाद जनवरी एक भी मंथ कम नहीं हुआ, जनवरी के बाद दिसंबर एक मंथ पीछे गए, दिसंबर के बाद अक्टूबर 2 मंथ पीछे गए, तो अक्टूबर के बाद तो 0, 1, 2, इसके बाद 3 मंथ पीछे जाएंगे, फिर 4 मंथ जाएंगे, फिर 5 मंथ जाएंगे, फिर 6 मंथ जाएंगे। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। एंड अगर आप वो करेंगे, जुलाई एंड अप्रैल विल बी द आंसर, ठीक है? दिस वन, ठीक है? What is the ratio of maximum value of x plus y to minimum value of x minus y? आपको एक रेंज दे रखा है x plus y का, x और y का। यहाँ से x plus y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आपको। x plus y का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आपको तो 8 plus 7 15, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस y के लिए क्या करेंगे कि x की मिनिमम वैल्यू लेंगे और y की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो दिस विल बी -3, 4 minus 7, so this is 15 and this is -3, आंसर वुड बी -5, ठीक है? none of the above. This question, इसमें क्या है? If you look at it, 25 is nothing but the sum of square of 7 and 24. अगर आपने प्रैक्टिस किया है, एनफ करा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करे होंगे। सेम फॉर 20, यू हैव टू रिमेंबर 7, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, या ऐसा क्वेश्चन करेंगे आप। जितना प्रैक्टिस करेंगे you will get to this. So this will also be the same, 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, एंड इफ यू लुक एट इट क्लोजली, 16 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा, 63 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आएगा, करेक्ट? 16 के स्क्वायर के एंड में 6 आएगा, 63 के स्क्वायर के एंड में 9 आएगा, 6 + 9 15, तो वट एवर द सम इज उसके एंड में 5 आ रहा है। दिस विल बी द आंसर। 4 डिजिट नंबर, आई थिंक जिसने भी LCM HCF करा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने करे ही करे होंगे। आई थिंक दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द LCM ऑफ दिस 4 विच इज 90, और आपको 4 डिजिट नंबर पे पहुंचना है। तो 1080, 90 का ऐसा मल्टीपल आपको देखना है जो 4 डिजिट का हो। तो सबसे छोटा 90 का मल्टीपल 1080 है, एंड 3 - 1 2, 5 - 3 2, 6 - 4 2, तो बेसिकली 1080 में से आपको 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपने ये किया ही होगा अगर LCM HCF कर रहे हैं, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कि आपको बताया जाता है। दिस क्वेश्चन, राइट? तो जब आप यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ते हो तो हम लोग यही बात करते हैं कि अगर 5 आ गया कहीं पे भी, और उसमें उसके मल्टीप्लीकेशन में अगर इवन नंबर है तो उस नंबर के एंड में 0 आएगा, 2 4 6। अगर ऑड नंबर है तो उसके एंड में 5 ही आएगा,
आई थिंक दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट वी स्टडी व्हेन वी स्टडी कि यूनिक डिजिट पे क्या आएगा, ठीक है। तो 5 विल बी द आंसर, राइट। दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन, आई थिंक यूपीएससी थर्ड या फोर्थ टाइम पूछ रहा है इसको। एंड देयर इज अ पैटर्न, ए बी बी सी सी सी, ए एक बार है, फिर बी 2 बार है, सी 3 बार है, एंड सेम गेट्स रिपीटेड। सो you will find out the answer by that way. A B B C C C, A B B, तो B C B, yes, B C B and A C, right? These kind of question. Divisibility. So as you can see, what is the maximum value of n such that this is divisible by 35 के power n. So if you look at this 7 यहाँ पे है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो दिस इज 7 के पावर 3, 7 अगेन यहाँ पे आ रहा है, तो 7 के बाद 3 4 5, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 का तो मोर देन 7 पावर आ रहा है इजीली। व्हाट वी नीड टू सी इज 35 इज 7 into 5। तो जब डिविजिबिलिटी देखते हैं तो हम देखते हैं लिमिटिंग फैक्टर क्या है, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर मतलब लेसर पावर किसका आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 5 का क्यूब आएगा, ठीक है। 125 इंटू 2, 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, इसका फैक्टर है। एंड इस यहाँ पे 5 का एक पावर आएगा, 5 का 4 पावर हो गया। सो 4 वुड बी द आंसर, राइट। डिविजिबिलिटी में अगर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके जो लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर रहे हैं उसका लेसर पावर जो है, दैट वुड बी द आंसर। तो यहाँ पे 5 के पावर 4 आ रहा है ऊपर, एंड 7 के पावर मोर देन 6 7 है, तो 5 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 4, राइट राइट। एन वुड बी 4, एन कैन नॉट बी मोर देन 4। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सिंपली 1/2 पुट कर लो, आंसर आपको पता चल जाएगा। 1/4 1/8 में कौन बड़ा है? फर्स्ट इज ऑब्वियसली ट्रू। 1/2 एंड 1/√2 में कौन सा बड़ा है? √2 इज 1.14, राइट। तो 1/2 इज नॉट ग्रेटर देन 1/1.14, ठीक है। सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट। दिस क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जिसको आप रीजनिंग में डाल सकते हो, जो देखने में बहुत लंबे हैं। मैंने केवल एक पिक किया है, आप उसमें वैल्यूज डालोगे और जस्ट गो थ्रू द स्टेटमेंट्स एंड यू विल फाइंड आउट कि यस डुएबल है। इसमें देखिए p + q का होल स्क्वायर -4pq। द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन इज कि ये पॉजिटिव कब होगा। अगर आपने a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर ये सब पढ़ा हुआ है तो इट इज क्लियरली विजिबल दैट p + q का होल स्क्वायर -4pq इज p - q का होल स्क्वायर, राइट। और p - q का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव कब नहीं होगा? जब 0 होगा, यानी p और q जब इक्वल होगा तब ये 0 होगा, अदरवाइज ऑल द टाइम पॉजिटिव होगा। तो p लेस देन q हो तब भी पॉजिटिव होगा, p ग्रेटर देन q हो तब भी पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट्स अलोन, ठीक है। इसमें क्या किया है, इसमें हमको क्या करना है, बोर्ड मास लगा दे इन्होंने सीधा। So you just apply the plus, minus, multiply and this, and you will get the answer. ठीक है। So this is where this video will end. I have selected only 11 12 questions, but you can find out multiple such questions in the CSAT paper. And most importantly, RC was there, which was easy to moderate. I would say straightforward. So CSAT was not the toughest. It will be like this in coming years as well. Learn to approach this in the right way. ठीक है। आपको 45 से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यू विल फाइंड आउट दोस क्वेश्चंस ऑल द टाइम। आपको रुकना नहीं है जहाँ पे टफ क्वेश्चंस है। मैं टफ क्वेश्चंस भी दिखा सकता हूँ आपको, जहाँ पे जिसको आपको स्किप ही करना था। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, सो दैट you get ready for the attempt, whoever is appearing for next year, and don't get scared of CSAT just because you are of humanities background or non-science background, or if your quants and your reasoning is not that great. Of course you need to practice for those 45-50 questions, like we just saw. Even in these questions there were few concepts जो आपको सीखना ही है, बट अगर वो कॉन्सेप्ट्स नंबर्स के, डिविजिबिलिटी के आप ढंग से सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं,
तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जस्ट स्टे काम and stay the approach the paper in the right way. Okay, thank you everyone, all the best.